But please. Have a seat and use the Have mic. your seat. तो फोटोग्राफी की फोटोग्राफी बहुत करते हैं, एग्जीबिशन रेगुलर एग्जीबिशन है उनकी तो एग्जीबिशन करते हैं, मैंने देखी फोटोग्राफी तो लगाते रहते हैं। Absolutely. Are you comfortable? Yes, sir. फिर हम तो जिंदगी में इकट्ठे ही Be काम किया। comfortable. Take your time. हाँ हाँ। And Yes, sir. shall we begin? Sure. Okay, Saurabh Upadhyay, please introduce yourself. Sir, I've done my graduation in mechanical engineering from NIT Kurukshetra. Post that, I've worked with Mahindra and Mahindra as a graduate engineer trainee in the customer care and service department. And so my optional is anthropology, and my hobbies include playing cricket and watching thriller movies. ऑप्शन है। So Saurabh, I would like to ask you question the Indian Constitution vis-a-vis the Indian society. Indian Constitution, rector principles of state policy, they say that we should develop scientific temper. Yes, sir. When you would see from the society's angle, there are so many things according to which our conduct is not as per the scientific temper, which is supported by the Indian Constitution. Like astrology, we believe in so many things, we do so many things, जिसको हम हिंदी में अंधविश्वास कह लीजिए, blind faith कह लीजिए. But our constitution says that we should believe in those things. कि जहाँ scientific temper means that inquiry. Our mind should be inquiring mind. Yes, sir. That we should establish a relationship between the cause and effect relationship. So how do you think that our conduct as a society member and our thinking as demanded by the Constitution, don't you think that there is contradiction in our society's ethos and what is demanded by our Constitution? How do you reconcile this? How do you explain this phenomenon? Yes, sir. You have rightly pointed out that there are many things in our society which goes against scientific temper. For example, sir, the superstitious beliefs that exist within the society and many other things. But sir, I think that our society as a whole is, in my opinion, is very scientific in nature, and not just from now, but from it dates back to even Vedic periods and Indus Valley civilizations. For example, sir, the layout of the city was very scientific, in which there was grid pattern, and then sir, we gave zero to proceeding to the Vedic age, and further we gave zero to the world. We were quite advanced in mathematics, and even today as well, sir, we are developing. We have reached on till the moon and Mars, and that too quite efficiently. But sir, I agree, there are issues. For example, sir, superstitions and some incidents of mob lynching. But sir, in my opinion, that we are progressing as a society and evolving in our thoughts, and we are on the right track, I think. जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, हाँ जी रास्ते में आगे बिल्ली आ गई, रास्ता काट दिया, जी सर, नई मकान बना लिया, उस पर वो काला कोई ऑब्जेक्ट टांग दिया, गाड़ी में कुछ ऑब्जेक्ट टांग दिया, पीछे टांग दिया, आगे टांग दिया, और साइंटिफिक टेम्पर बोलता है कि इन चीजों की जरूरत नहीं है. एंड स्पेशली घर में बच्चा पैदा होता है, शादी होनी होती है, तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं. हाँ जी लाखों की गिनती में एक दिन में शादियां होती हैं. एक सीजन है जिसमें होती हैं, साउथ में अलग होती है, नॉर्थ इंडिया में अलग होती है. एस्ट्रोलॉजी तो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एक ही होनी चाहिए. अंग्रेज इसको मानते नहीं, ये इंडिया वाले इसको मानते हैं. जी सर. ये जो चीज है, ये कंडक्ट है कि वही आदमी एक कॉलेज में होगा या दफ्तर में होगा या अपने इंस्टीट्यूशन में होगा, तो he will behave as a scientist, doctor, but when he behaves as a man of the society, member of the society, उसका behavior pattern बहुत अलग है, opposite है.
So this is a question basically. सर मुझे लगता है कि सर ज़रूर ये सब कुछ इश्यूज हैं, लेकिन सर एक सोसाइटी और एक कल्चर के अपने ट्रेडिशंस होते हैं और बिलीफ पैटर्न्स होते हैं, जिससे कि वो उसके कंडक्ट को और उसके लाइफ में अनसर्टेनिटी को थोड़ा कम करने के लिए, उसके गॉड से रिलेशन बनाने के लिए, उसकी लाइफ में फियर्स को टैकल करने के लिए, जैसा हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं कि रिलीजन का जन्म क्यों हुआ। तो सर इन सब बातों से मुझे लगता है कि इंसान जो है वो अपने आप को, अपने रिलीजियस पैटर्न्स को, बिलीव्स को एक्सप्रेस करता है। ऑल्दो कई बार ये अनसाइंटिफिक हो सकते हैं, बट सर हम जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम साइंटिफिक टेम्पर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक और होते जा रहे हैं, और ये सुपरस्टिशंस भी अब कम हो रहे हैं। जैसे कि सर पहले ह्यूमन सैक्रिफाइस की प्रैक्टिस होती थी डोंगरिया खोंड्स में, लेकिन सर अब वो काफ़ी बहुत नेग्लिजिबल कोई केस उसमें आता है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रोग्रेस ज़रूर कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र के बारे में आपका क्या विचार है? सर मेरे हिसाब से सर ये चीज़ें भी थोड़ी बहुत साइंटिफिक ज़रूर हैं, क्योंकि सर जैसे अब ईस्ट फेसिंग घर को शुभ माना जाता है, लेकिन सर अगर उसके साइंटिफिक टेम्पर में अगर हम जाएं तो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, और सर उसकी पहली जो किरण होगी वो घर में आएगी, वो एक नई ऊर्जा लेके आती है, एनर्जी लेकर के आती है और फ्रेशनेस लेकर के आती है। तो सर ये कुछ चीजें जरूर हैं जिनके रीजन शायद कुछ और हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका साइंटिफिक, मुझे ऐसा लगता है कि साइंटिफिक ओरिजिन सारे घर तो ईस्ट फेसिंग नहीं हो सकते। हाँ जी सर, जी सर तो बिल्कुल। फिर उनकी तो फिर नहीं सर, ऐसा नहीं है कि वो पोजीशन बड़ी खराब होगी। नहीं सर, ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, वो भी है सर, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि जो उसमें रीजनिंग दी गई उस समय के हिसाब से, जो उस समय का जो अंडरस्टैंडिंग थी चीजों की, उसके बेसिस पर वो बनाए गए। अच्छा, हाँ जी। डॉरी का एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द एक्ट, डॉरी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है डॉरी नहीं लेना, समाज कहता लेना है। हाँ जी सर। डाउरी जरूर, डाउरी सर एकदम ही कंडेमनेबल एक्ट है, और जो कि सर डाउरी मुझे भी लगता है कि सोसाइटी में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं वो कह रहा था, मतलब आई एम सेइंग, quoting some examples from the sir. law, from the constitution, and the practices which we are following in our life. So don't you think that अब society का जो behavior है वो constitution के antithesis है? सर कुछ ऐसे इंसिडेंट जरूर हैं, कुछ एग्जांपल जरूर हैं जो सर थोड़े अनसाइंटिफिक होते हैं, और कुछ जो एक्ट्स हैं जो हमें चेंजेस लाने हैं थ्रू लॉ हम ला रहे हैं, विद इन सोसाइटी हम ला रहे हैं, लेकिन सर लार्जली मुझे ऐसा लगता है जो इंडियन सोसाइटी का कैरेक्टर है वो साइंटिफिक ही है, और वो इवॉल्व भी हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक होता जा रहा है सर। वो दिन पर दिन सर्टिफिकेट की बात नहीं भी कर रहा था, आई वाज ओनली टॉकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये हाँ जी। नहीं होना, समाज कहता है कि वो होना चाहिए। हाँ जी। जैसे कि कास्ट सिस्टम है, रिलीजन कहता है कि पीपल आर नॉट इक्वल, कॉन्स्टिट्यूशन सेज पीपल आर इक्वल। हाउ डू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना? सर सर्टेनली कास्ट सिस्टम एज अ हिस्टोरिकल प्रैक्टिस जरूर सर उसने डिस्क्रिमिनेट किया चीजों को, लेकिन सर कॉन्स्टिट्यूशन ने एक टॉप डाउन अप्रोच में चेंज लाने की कोशिश करी है, लेकिन सर सोशल चेंजेस मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम उनको आने में ग्रेजुअली लगता है, और सर धीरे धीरे जो कास्ट सिस्टम का के जो इल प्रैक्टिसेस हैं अब वो कम होती जा रही हैं। जैसे अनटचेबिलिटी अब शायद रूरल पॉकेट्स में ही कंसंट्रेटेड रह गई है, अर्बन एरियाज में उतना ज्यादा नहीं है अब, लेकिन पहले बनस्पत पहले वो काफी ज्यादा हुआ करती थी। तो सर धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ज्यादा रैशनल होते जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने चेंज लाने की कोशिश की है और वो काफी हद तक इसमें कामयाब भी रहा है, लेकिन सर सोशल चेंजेस जो हैं एक ग्रेजुअली इवॉल्व होते हैं टाइम के साथ साथ, ऐसे ही धीरे धीरे हमारी सोसाइटीज में भी चेंज आ रहा है। आप देखें कि मीडिया में हाँ जी। और अपने उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जितनी भी शादियां होती हैं उसमें आपको हर हफ्ते पता चलता है कि इंडिया, हाउ टू ए ग्रेट एक्सटेंट इंडिया इज स्टिल डिवाइडेड इन वेरियस रिलीजियस एंड कास्ट ग्रुप्स। यस सर। तो वो तो अभी कुछ बदला नहीं है, हम तो ओपनली प्रोपोगेट कर रहे हैं, but we are propagating कि we will marry only within our own caste. जी This is 99% still.
Yes, sir. Despite the spread of education and other scientific inventions and all that. Or you feel ke, will this continue or should it continue? Is it good for the country as a whole? And when we say that we are going to become world guru, सर एक कंट्री के लिए मुझे नहीं लगता कि एक सोसाइटी को ऐसे डिवाइडेड रहना चाहिए डिफरेंट ग्रुप्स में, जहाँ पे उनके सर इंटरेक्शन को, उनके मैरिजेस को ऐसे रेगुलेट करा जाए विद इन डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स. लेकिन सर अब ये ऑल्दो ये एक इनजस्ट प्रैक्टिस इवॉल्व हुई है हिस्टोरिकली, लेकिन सर अभी मुझे ऐसा लगता है प्रेजेंटली अब जैसे लव मैरिजेस भी काफ़ी सोसाइटी ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है. और सर अब अर्बन पॉकेट्स में तो सर काफ़ी ज़्यादा now you have spoken about the love marriage. If I want to say, love marriage is an exception. वो रूल तब बनता है जब it's universally accepted. Love marriage is an exception. And even you see that the surnames which are being used in the country, those are promoting even all those religious and caste affiliations. 40 साल पहले, 50 साल पहले जगन्नाथ मिश्रा जी ने जो कुछ लोगों ने जो बोला था कि उसको बंद करना चाहिए. पहले नाम होता था संजय कुमार जी, पहले नाम होता है विजय कुमार जी, अब होता है विजय शर्मा, आज होगा विजय गुप्ता जी, आज होगा विजय उपाध्याय. मतलब your name signifies your existence in the society. Instead of removal of these differences, we are promoting these differences. How you see this? Whether it is changing or it is being promoted? सर इन माई ओपिनियन आई थिंक दैट सर इट इज़ सर्टेनली चेंजिंग, क्योंकि सर अब जैसे पहले जो एम्प्लॉयमेंट बेसिस था, एम्प्लॉयमेंट भी सर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हुआ करता था, उसमें मेरिट का उतना जगह नहीं थी जो हमारा ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम था. कि फॉर एग्जांपल सर एक फैमिली जो कारपेंट्री का काम करती है उसका बेटा भी कारपेंटर बनता था. लेकिन सर आज इट इज़ बेस्ड ऑन मेरिट. आज कोई IIT से ग्रेजुएट है, NIT से ग्रेजुएट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, या किसी भी और कॉलेज से ग्रेजुएट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, ही गेट्स एम्प्लॉयमेंट इन एवरी अदर एस्पेक्ट. एक फैमिली में ही आज फादर अलग प्रोफेशन में है, बेटा अलग प्रोफेशन में है, उसका फिर आगे जनरेशन अलग, एंड ही इज फ्री टू चूज. ऐसे ही सर मुझे लगता है लव मैरिजेस में भी ऐसा ही, मैरिजेस में भी ऐसा ही है कि अब सोसाइटी एज अ फैमिली भी हम सर ज़्यादा लिबरल होते जा रहे हैं. ऑल्दो सर कई जगह पर और कुछ चीज़ों में हम अभी भी थोड़े से कंजर्वेटिव ज़रूर हैं, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रोग्रेस एक राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं, धीरे ही सही, लेकिन राइट डायरेक्शन में चेंज जरूर आ रहा है. जैसे एम्प्लॉयमेंट में हो गया सर, मैंने मैरिज का बताया, ऐसे ही सर इंटरेक्शंस में भी. आज हम अर्बन एरियाज में रहते हैं तो सर हम मेट्रोज में ट्रेवल करते हैं तो सर हम आगे साइड वाले की कास्ट कोई पूछ कर नहीं बैठते हैं, और इंटरेक्शन या कोई अनटचेबिलिटी ऐसा कोई कंसेप्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता है सर. अच्छा, एक और चीज जो आजकल काफी हो रही है भाई, स्टूडेंट्स, professionals are leaving India and going abroad in large numbers. हरियाणा पंजाब की बात तो आपको ही पता, हमें ही पता है. एंड यूपी के लोग तो पंजाब आ रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं. So what you see this phenomena that why people are going in large number to foreign countries. Sir, there are multiple factors for this phenomena, which is brain drain. Sir, one is I think the employment opportunities. People migrate mainly for better employment opportunities, better packages to abroad. Sir, and other is sir better educational opportunities for graduation, post-graduation. People migrate outside country. And then sir, there are other factors. For example, sir, on the pretext of marriage, on grounds of better health opportunities, pollution, etc. But sir, I think that the reasons for this can be categorized into two-pronged push and pull factors. Sir,
one is the pull factor that they are providing good opportunities, and one is also there has been a deficiency in our development model that we are not able to produce as many jobs as per the addition of labor force in the country. सो सर द जॉबलेस ग्रोथ का जो फिनोमिना है हमारे देश में, उसकी वजह से भी सर ब्रेन ड्रेन ये थोड़ा हो रहा है. To try to explain the situation of demand and supply. यस सर. Demand and supply. Supply is less, demand is more. Means supply of job is less. Yes, sir. Yes, sir. Demand is more. Demand is more because population is more. Population is more. Yes, sir. And community is not having any population policy. Do you think that government should have some population policy? Because it is not having adequate resources to feed the increasing population. Sir, I think on the on the issue of population, I think that a change from within the society and on the basis of awareness, individual agency, wherein we are making the individuals more capable and rightful in their thinking, will be more apt as compared to a forceful or coercive government policy. Sir, the need for controlling of population is that we provide them with education, health, so that they become more aware, they understand the merits and demerits of having more children, and on the basis of the merit based, they take their own decision. And sir, in the recent times, I think India's population has also stabilizing, is not growing as fast as it was, and our TFR, total fertility rate, is also 2 as per the recent NFHS 5 data. So it has also reduced below the replacement level. Although in some pockets it is an issue. For example, in Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh, TFR is still high. But on a countrywide level, we have reduced below replacement level, and it is stabilizing. So sir, I do not think that there is a need for a population policy. But sir, at the same time, we'll have to make our population more capable by providing them education, by providing them skill development, and also sir by generating more jobs by investing into labor intensive sectors. For example, sir, food processing sectors or agro-based sectors or textiles. Sir, this should be the approach, I think. तो इसका पहले आपको पता होगा 70s और 80s में एक वो होता था पॉलिसी, तो 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, तो वो पॉलिसी सही थी या गलत थी? सर बच्चे 2 ही अच्छे, यू आर टॉकिंग अबाउट? यस, हम दो, हमारे 2 बच्चे 2 ही। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। वो पॉलिसी ठीक थी या गलत थी? सर वो पॉलिसी मेरे हिसाब से ठीक थी, क्योंकि सर उस टाइम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देश में काफी ज्यादा था, और सर वी अडॉप्टेड अप 2 चाइल्ड, नॉट officially but through awareness campaigns. So it was not imposed upon people, but awareness was generated through contraceptive devices, pills, and IEC campaigns to enable the population to think broadly in this aspect. So sir, I support that policy because it was not coercive but only enabling policy. Because एक और चीज इसमें आ रही है, when population is increasing, there is pressure on the resources, there is pressure on the government also. Yes sir. That leads to giving 5 kg food items to 80 crore people. Yes sir. Don't you think that we are not able to reconcile with our resources, reality of life? My economic capability is only to give education only to 2 kids. Suppose, but I'm having 7 kids. How can I give quality life or everything to them when my country, my own resources are not enough to feed them? Sir, so How there. Continue, sir. Please. Country itself is not able to provide quality life to the people of this country. Sir, I think that So this is individual pattern getting reflected at the national level.
Sir, I completely agree with your point that our country, the amount of resources that our country is generating at the moment is much higher than the population. But sir, I think that at present, the need is to make the population capable by providing them education, by providing them health, so that they become contributing member of the society, and we are able to reap the demographic dividend at the same time. Because sir, at looking at huge population, there are two perspectives. One is the negative perspective, that they are burden on the resources, but there is a flip side positive aspect also, wherein they can be reaped as a very important potential resources. Turning human resource into human capital should be our focus. But when you provide food to 80 crore people, it means it is a burden. Yes, sir. Sir, it is. There have been certain deficiencies in our economic model. For example, jobless growth. For example, premature deindustrialization, low share of manufacturing, and sir, low level of skill development. And industry, we have not been able to provide skills to our population as per Industry 4.0. The newer generation technologies, there are issues, but we'll have to make interventions at those levels instead of coercive and forceful population control measures. Okay. Next. सौरभ Yes sir. Yes sir. सौरभ आपके नाम का मीनिंग क्या है? सर, सौरभ का मतलब होता है सुगंध. सुगंध. हाँ जी, प्लेजेंट फ्रेग्रेंस. Good. So you play cricket? यस सर. Okay. क्या इसमें आप बैटर हैं? सर, मैं बॉलिंग करता हूँ मीडियम पेस. Medium pace. जी सर, मैं ओपनिंग करता हूँ अपनी टीम के लिए, और Very good. आई ऑल्सो बैट लो डाउन द ऑर्डर एट 6 or 7. Oh, that's great. So all rounder are you? यस सर. Okay. Any favorite pacer globally? Globally, yes sir. Present, past, doesn't matter. Sir, in the past, I like Brett Lee and Dale Steyn, and at the present moment, I like Jasprit Bumrah. Jasprit. Why Jasprit Bumrah? What is the particular characteristic जो आपको पसंद आता है? Sir, his ability to control the ball, and wherever he wants to pitch the ball, he pitches the ball there itself. Okay. He has great control over his ball and also over his swing. So, sir, it makes him a very lethal bowler for the batsman to judge, because he sticks to the basic, bowling in the right areas and making the batsman commit mistakes. ठीक, perfect. You also watch thriller movies? Yes, sir. Okay. Thriller movies, किस मतलब आप इस जॉनर की कौन सी पर्टिकुलर मूवी आपने अभी रिसेंटली देखी है? सर, मैंने नाइव्स आउट मूवी देखी थी अभी. ओके. हाँ जी सर, और अभी रिसेंटली सर मैंने दृश्यम 2 भी देखी थी. Which one? दृश्यम 2. दृश्यम. जी सर. जहाँ तक मेरी लिमिटेड जानकारी है मूवीज के बारे में, तो कहा जाता है थ्रिलर मूवीज, ये जॉनर इंडिया में अभी इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है. इतनी अच्छी थ्रिलर मूवीज नहीं बनती हैं एज कम्पेयर टू कोरियन साइड, जी सर. है ना? जी तो सर. क्या वजह है कि इंडिया में थ्रिलर मूवीज इतनी बेहतर नहीं बन रही हैं? सर, अभी जैसे बोलते हैं कि इंडियन सिनेमा में सर क्या हुआ है कि अभी इंडियन सिनेमा को हम इक्वेट करते हैं हिंदी सिनेमा से ही, लेकिन सर अगर हम रीजनल सिनेमा में देखें तो सर काफ़ी, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी थ्रिलर मूवीज ऑलरेडी आ रही हैं. जैसे सर दृश्यम ही है, वो वर्ल्ड अक्लेम्ड थ्रिलर मूवी है. और सर रथ शासन है, जैसे साउथ तेलुगु मूवी है. दृश्यम भी एक साउथ इंडियन मूवी की रीमेक थी. सर मेरे हिसाब से अभी जैसे एक प्रेजेंटली एक मूवी आई मर्डर मुबारक, मेरी क्रिसमस, ये सारी सर रीजनल मूवीज हैं जो कि जिनको काफ़ी क्रिटिकली अक्लेम किया गया है. तो सर हिंदी मूवीज में, सर बॉलीवुड में देयर आर इश्यूज, कुछ इश्यूज हैं, जैसे सर नेपोटिज्म का इशू है, फेवरेटिज्म का इशू है, गुड कंटेंट के प्रमोशन का थोड़ा इशू है. तो सर वो सारे इश्यूज ज़रूर हैं, लेकिन सर एज अ होल मुझे लगता है कि इंडियन सिनेमा में अच्छी थ्रिलर मूवीज बनती हैं अगर इफ़ वी एक्सप्लोर द कंटेंट. क्या इसमें बजटिंग का भी कुछ रोल है कि जी सर. वेस्ट दे आर हैविंग ह्यूज बजट्स? जी सर, वो भी हमारे है. पास constraint जी सर, उनकी इंडस्ट्री सर काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी उनको एक्सपोजर भी सर काफ़ी है. क्योंकि हॉलीवुड मूवीज़ में सर काफ़ी जो इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस हैं वो सर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनका एक बहुत डाइवर्स एरिया ऑफ कंटेंट रहता है. तो उनको जो सब्जेक्ट मैटर होता है ड्राइव वो बहुत सोर्सेज से करता है, प्लस उनका बजट भी बहुत ज़्यादा होता है सर. तो इंडिया में सर ये लिमिटेशंस भी हैं. ओके. नहीं, जहाँ तक
व्यूअर्स की बात है तो हमारी मूवीज बहुत अच्छी जी कर रही सर। हैं, इवन चाइना जी सर। दंगल वगैरह दंगल। आपने देखा होगा, तो अच्छी मूवीज जी कर सर। भी रही हैं। अच्छा, जी सर, कर व्यूअरशिप की तो ऐसे नहीं, डबिंग के एरा में, नहीं, नहीं, आर्टिफिशियल नहीं। इंटेलिजेंस के एरा में। जी, जी, जी। Okay. Just I want to come to some academic sort of thing or the current affair. Recently, लोकसभा रिजल्ट आर अनाउंस्ड और बहुत ही रोचक तथ्य सामने आए। जी सर। तो पहले तो मुझे बताएं, गुरुग्राम से कौन एमपी जीते हैं? सर राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है जी। इसमें अभी एक घटना घटी है, आज काफी इंटरनेट पे वायरल भी, हालांकि घटना तो कल की है, कि मंडी हिमाचल प्रदेश से जो ऑनरेबल एमपी चुनी गई हैं, जी सर। मैडम कंगना रनौत, जी सर। उनको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे एक सीआईएसएफ के सिक्योरिटी पर्सनल ने स्लैप किया है, जी सर। जिसकी वीडियो भी अभी सर्कुलेट की जा रही है एज अलेज्ड। सिक्योरिटी पर्सनल का ये बिहेवियर, इसके बारे में आपकी क्या राय? सर वो जो ये इंसिडेंट घटा है, इसमें सर जो सीआईएसएफ पर्सनल हैं उनकी तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आया है कि वो उनके फार्मर प्रोटेस्ट पे जो उनका दिया गया स्टेटमेंट प्रोटेस्ट पे बोलनी थी, मेरी जी। मदर वहां पे बैठी हुई जी, थी, जी। इमोशनल कनेक्ट, वो सब हुआ। लेकिन सर मेरे हिसाब से दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और सर ये मेरी नज़र में काफ़ी निंदनीय है कि एक सिक्योरिटी पर्सनल जिसको सर जिसकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स की रक्षा करना, वही एक सिटीजन पर, फेलो सिटीजन पर अगर वो ऐसे हाथ उठाता है, ठीक। तो सर मेरी सर ये पर्सनल, हाँ जी, जितनी इंफॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल है कि जी। वो गई फार्मर प्रोटेस्ट पे, कंगना मैम के बयान से दुखी थी और उन्होंने स्लैप किया। जी सर। हम मानते ही सत्य है, जी सर। और आपने कहा ये निंदनीय है और ये अनफॉर्चुनेट है। क्या सिक्योरिटी पर्सनल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, डिपार्टमेंटल कार्रवाई? जी सर, मेरे हिसाब से होनी चाहिए। शी मस्ट बी सस्पेंडेड। सर एक पर्टिकुलर इंक्वायरी होनी चाहिए कि Okay. क्या घटना हुई, क्यों हुआ, ऐसे रीजंस, ऐसे क्या लेड अप टू दिस इशू, और सर उस बेसिस पर जो प्रॉपर मान के चलते हैं ये हुआ, मैंने जी कहा सर। इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और मानिए यही हुआ, जी सर। तो क्या जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं सीआईएसएफ की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जी या पब्लिक इमोशन, पब्लिक कंसाइन, क्योंकि कोर्ट भी इनको कंसिडर करता है कई बार, क्या इस आधार पर उनको कंडोन कर देना चाहिए? नहीं सर, मेरे हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सर सिक्योरिटी एजेंसीज जो होती हैं वो बहुत क्रिटिकल होती हैं देश की सिक्योरिटी के लिए, और उसमें डेकोरम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। अगर ये सिक्योरिटी पर्सनल ना होती, एक टीचर होती, स्कूल टीचर, देन नहीं सर, किसी के लिए भी, हाँ जी सर। तो सर ये ऐसा डेकोरम इनके लिए मुझे लगता है मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से प्रॉपर इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है। आप गुरुग्राम से आते हैं, बट आई एम क्यूरियस अबाउट माय लास्ट क्वेश्चन टू यू अबाउट साउदर्न हरियाणा। साउदर्न हरियाणा जो है, दक्षिणी हरियाणा, कौन कौन से इलाके आते हैं मेजरली इसके अंदर? सर दक्षिणी हरियाणा में जो दक्षिण हरियाणा का जितना भाग है, जो कि जैसे पलवल, फरीदाबाद, मेवात, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, तो मुझे लगता है दक्षिणी हरियाणा में ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, गुड़गांव और फरीदाबाद भी दक्षिणी हरियाणा में है? जी सर। आर यू श्योर अबाउट दैट? यस सर। ओके ओके। क्या चुनौतियां हैं इस इलाके की? सर सबसे पहले क्या तो मैं सर सीधा इसको और चेंज करूं, चुनौतियों के साथ साथ ऐसा माना जाता है कि ऐतिहासिक तौर पे ये पिछड़ा हुआ इलाका जी सर। सब जी सर। है ना, लिटरेसी में, या आप इकोनॉमी के मामले में देख लें। वाइस सर सबसे पहले तो सर आपने ही बताया कि पहला चिंता का विषय यहाँ पर सर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस काफ़ी है। मैं अब उसकी वजह जानना चाहता हूँ, अच्छा। क्यों है पिछड़ापन यहाँ पर? इकोनॉमी भी है, लिटरेसी भी है, आप जी सर। किसी भी पैरामीटर पे जाएं तो नॉर्मली ये इलाके आपको पिछड़ दिखेंगे। जी सर। वजह क्या है? सर इनमें मेरी लिमिटेड जानकारी के हिसाब से मुझे लगता है सर कि एक तो जब पंजाब एक राज्य के तौर पर था तो वो काफ़ी बड़ा था, तो उसका जो सदर्न एरिया जो था वो ड्यू टू पॉलिटिकल नेग्लेक्ट इस अनदेखी हुई इस इलाके की, एक ऐतिहासिक तौर पर एक अनदेखी हुई। उसके बाद सर एक पॉलिटिकल रीज़न भी है, क्योंकि ये सर उतनी सीट्स कंट्रीब्यूट नहीं करता है
विधानसभा में, और जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हुए हैं हरियाणा के, तो उनमें से बहुत कम ही दक्षिणी हरियाणा से आए आए हैं। तो सर कौन से हैं? सर राव इंद्रजीत सिंह के पिताजी ही थे राव वीरेंद्र सिंह, जो कि मुख्यमंत्री भी रहे थे कुछ समय के लिए। तो सर उनको छोड़ करके कोई दक्षिणी हरियाणा से सीएम भी नहीं रहा है। तो सर एक ये भी पॉलिटिकल रीजंस भी है। So from historical to present is a political reason only. नो सर, पॉलिटिकल रीजन है, उसके साथ साथ और रीजन भी हैं सर, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक रीजंस भी हैं। जैसे सर मेवात का इलाका है, तो सर वहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट उस रीजन में काफ़ी कम है। और सर अगर हम देखें इकोनॉमिक वाइज भी, तो सर एक दो डिस्ट्रिक्ट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में इंडस्ट्रीज या ऐसे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स भी नहीं डेवलप हुए हैं, तो उसकी वजह से एक स्पिल ओवर इफेक्ट भी उतना नहीं आया है। प्लस सर रेल कनेक्टिविटी भी काफ़ी बाद में आई है इस रीजन में। तो सर कनेक्टिविटी इश्यूज भी हैं, इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं। Fair enough. So next. Okay. Saurabh, yesterday, did you watch the match? USA versus Pakistan. यस सर। So, what do you think is the reason for the loss of Pakistan yesterday? Sir, Pakistan, first of all, sir, in my opinion, the major cause for their loss was because USA was playing a much bigger side, Pakistan. So the pressure was on Pakistan, and Pakistan yielded under pressure. Okay. Do you So- think they needed under pressure? Yes, sir, I Just think. fielded badly in the super over. That's it. That's all they did. You saw the super over, right? Yes, I saw the Just super. bad. They fielded badly. That's it. But sir, that was the outcome Okay. of a reason, which was the pressure, because they had pressure on their side. But this was the okay. Okay. Yes, sir. Then, what do you think about the choice of Harris Rock being given the last one? Yes, sir. I think that was also a poor choice. But sir, the immediate cause is this. But there have been certain impending issues in Pakistan cricket, due to which this has led to their defeat in this match, or even in 50 over World Cup last year. Right, that's one way of thinking about it. USA team is, if you think, is an NRI 11, right? If you think Yes, about sir. it, India and Pakistan. Yes, sir. Both, if you consider it, non-resident Pakistanis, non-resident West Indies, non-resident. Exactly. We are everywhere. Yes. So, how do you see this from the eye of an Indian group when you see so many Indians playing for other countries? Sir, but it has both aspects, positives as well as negatives. But sir, I think that It's a personal opinion. Personal opinion, This sir. is not an analytical question. Sure, sir. This is So- how do you sir- feel when you see so many Indians playing for other countries? Sir, in my personal opinion, sir, I do not cherish this a lot, because sir, I think that they should be given ample opportunities if they have the talent, ample opportunities within India में क्या the country. खेल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? Sir, they should be, sir. no, Population but ज्यादा, don't you think population ज्यादा है, कैसे खिलाएंगे हम टीम में? बट सर जो और लेवल्स पर टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती हैं, रणजी ट्रॉफी है, तो सर मुझे लगता है इनमें इन लोगों को अच्छी तरह अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और आईपीएल में भी सर हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, सिर्फ इंटरनेशनल जो कैप्ड प्लेयर्स हैं उन्हीं को नहीं, लेकिन जो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स हैं वो भी सर काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे सर किंग्स 11 पंजाब के लिए इस बार Now, let's talk about Gurgaon. What do you think is the biggest challenge of administration in Gurgaon? ऑफ Administration in Gurgaon. एडमिनिस्ट्रेशन। सर वन चैलेंज, Anything. Just name one what comes on your mind. Sir, I think the major governance challenge in Gurgaon is the multiplicity of agencies and the overlapping of jurisdiction between different agencies. Like how? Like in Municipal Corporation of Gurgaon, there are three basically urban planning agencies in Gurgaon only. Like Municipal Corporation of Gurgaon, GMDA, Gurgaon Metropolitan Development Authority, and HUDA, Urban Developing. हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, विच हैज बीन रीनेम्ड एच HSVP. तो सर
in between these three organizations, I think the jurisdiction has been overlapping, due to which it leads to evading of responsibility and also sometimes confusion regarding the jurisdiction, due to which the urban planning as a whole suffers. Does Gurgaon actually have urban? Next question. Sir, that is It the does issue. have. Every मतलब ये ऐसे नहीं sir, it does have urban, it does have an There's urban a lot planning. of criticism on that. कुछ है ही नहीं जहाँ हम क्या बना दिया. नहीं सर, वहाँ अर्बन प्लानिंग तो है, लेकिन सर उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ग्राउंड पर, और वो थोड़ा सा एक इशू है. प्लस क्या है सर, गुड़गांव में पॉपुलेशन इंक्रीज भी बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पर हुई है, उसको हमने अकाउंट नहीं किया है अर्बन प्लानिंग में. Have we not accounted for it or are we just ignoring it? No sir, we are not ignoring it, but our estimates, because in Gurgaon urbanization has occurred at a very fast rate because of private investment coming in, especially after LPG reforms. So okay sir. Done, sir. सौरभ, Just a second. इस ओवर आप माइक यहाँ पे रेस्ट कर दें और हम 2 से 3 मिनट में फिर फीडबैक लेंगे. Pete, please put the mic on again. Interview is now over and we will be talking in relaxance. सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि आपका असेसमेंट क्या है अपनी परफॉर्मेंस के बारे में. आपका अपनी असेसमेंट के बारे में, आपकी असेसमेंट क्या है? सर मुझे लगा कि मैं कुछ जगह पर मैंने थोड़े गलत आंसर्स मैंने दे दिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर वो हारिस राव वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, तो मैंने एकदम छूटते ही कह दिया बैड चॉइस, तो वो मेरे को थोड़ा. Okay. और सर मुझे सर, और सर बाकी मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा कॉन्फ्रंटेशनल शायद नहीं होना चाहिए था. क्या नहीं होना चाहिए था? कॉन्फ्रंटेशनल. He's getting it. थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, जैसे मुझे 1-2 मॉक में. हाँ Where are जी, you? हाँ जी. Where are you right now? At this moment. At this moment, where are you? सर एट CBL. Very good. And what are we doing right now? Mock interview. Wonderful. Is it a discussion Yes with sir. your friends? No, it No. isn't. It's an interview. So in an interview, what is being judged? Your suitability as an administrator, right? It is not a discussion. It is a check that is this person mature enough to be an administrator. Clear on this? Sure sir. Okay. Now, as an administrator, you will be interacting with MLAs, MPs, and they'll have a discussion. You cannot indulge in a discussion with them. You have to give the legal point of view and then rest your case. What happened is, in the interview, you started having a discussion with the panelists, which is good, by the way. But it went to another extreme because there were a lot of questions which were just yes or no questions. You elaborated and opened new points in there, right? When you see your video, you realize that question पूछा है कि population policy होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. Answer क्या है? Yes, yeah, no. इससे ज़्यादा आंसर देने की कोई जरूरत नहीं. सर पूछ लेंगे अगर, right? He wants a elaborate answer from you. Clear on this? But you were elaborating everything, right? He mains का आंसर नहीं होता जिसमें हम कोई नहीं लिख देते हैं, right? शायद नंबर मिल जाए इसके. ये मेंस का आंसर नहीं है. यहाँ पे मार्क्स कटते हैं बोलने से. ठीक है, right? ठीक है. But initially it was very nice. Your communications, you were very sensible. You maintained balance in your judgment. But अब तो जब इंटरव्यू अच्छा चल रहा होता है तो उसको बंद करना होता है. समझ रहा है? राइट? जब इंटरव्यू अच्छा चल रहा है, then you have to close the interview quickly, so that इसी इंप्रेशन पे वो 50 नंबर दे और बाय बाय. ठीक है ना? You forgot that part of the interview. कि इंटरव्यू बंद करवाना है मैंने किसी तरह. बड़े अच्छा आंसर दे दिया मैंने, बढ़िया चल रहा है इंटरव्यू. ठीक है? Because you have to get out now, right? Because उनको तो मजा आ रहा है, the other side को तो कि बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा मिला है आज, तो 2-3 सवाल और हो जाए. ठीक है? But the other side has so much experience. You really don't want to discuss it. Right?
you want to impress them and get out. Everybody is 60 plus. Everybody has some of them might have made that policy, which is Exactly. being discussed. So let's not. मतलब उसको तो तूने लंबा खींच दिया इंटरव्यू when you didn't need. Okay, right? Okay, so ये ध्यान रखना इंटरव्यू रूम कि टाइम का ध्यान रखना कि 10-15 मिनट हो गए हैं और इंटरव्यू बहुत बढ़िया चल रहा है. अब आई डोंट नो बोलना स्टार्ट कर. यहाँ से ठीक है ना, बिकॉज यू हैव टू वॉच दिस इन द इंटरव्यू रूम इटसेल्फ कि इंटरव्यू बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है ना. यू हैव टू क्लोज द इंटरव्यू. सर वो एक्चुअली क्या वो मुझे सर एक मॉक में ना ये है ना वो फीडबैक मिला था कि तुम्हारे आंसर्स कंप्लीट नहीं है, तुम एक दो साइड ही एक ही साइड दे रहे हो या एक दो पॉइंट ही दे रहे हो. तो सर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इलैबोरेट और करना चाहिए दोनों. Remember, it's the framing of the question. अगर क्वेश्चन yes and no आंसर डिजर्व करता है उतना ही बोल सकता. ये ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ पे ज्यादा बोलने के कुछ नहीं है, अच्छा ठीक है ना. राइट, फाइल नोटिंग ना 2 लाइन लिखते हैं, राइट. ठीक है सर. देखा ना, वन साइडेड होना और ओवर इलेबोरेटिव आंसर होना, ये दोनों चीजें अलग अलग. मतलब क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना. एक है, should India have a population policy? Should corruption be eliminated in India? इसका आंसर क्या है? यस. Yes. ठीक है. फिर अगला क्वेश्चन है कि can you elaborate how corruption can be eliminated? इसका elaborate आंसर है, लंबा खींचना है, इसको तो बताना पड़ेगा. So there's so many ways to do it. ठीक है ना, राइट. जैसे अब गुड़गांव की प्रॉब्लम है ट्रैफिक, उसका एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है which is can be done today by evening. There is a long term solution which might take years, right? So in the same way, yeah. So this is what was happening in the interview, right? And if you've been watching, you realize this. You were extending your answer when you didn't need to, which is fine. It's fine. ठीक है ना. And don't carry one mock feedback into another level. उस टाइम का फीडबैक था और वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका है तेरे अंदर, ठीक है ना. बिकॉज इवन इफ यू जस्ट वॉच योर वीडियोस वंस मोर, राइट, व्हाट हैपेंस इज अपनी ना बॉडी लैंग्वेज देख के सब कुछ चेंज हो जाता है. अगर आपने पहले कभी मॉक नहीं दिया है, अपना फर्स्ट मॉक का वीडियो देख लो ना, तो आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि यू नो इट्स अ वेरी यू नो इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच योर ओन वीडियोस. सो वो वही है. सो एनीथिंग अच्छा, बाकी सब ठीक है. इनिशियली तो मतलब बहुत ही पैसे था. बहुत ही बढ़िया था. इट वाज नाइस. और सर ने जैसे बोला ओवर टू ओवर कन्वर्ट. एक्सप्लेनेशन ना. ठीक है सर. सी जैसे सर कह रहे हैं कि भाई टोटली कनकर के शुरुआत में बहुत अच्छे थे. एक और चीज हो जाती है, अगर आप शुरुआत में जाके एकदम से ओपनिंग बैट्समैन आप विराट कोहली वाला सेट कर दो ना ये स्टैंडर्ड, अच्छा उसके बाद में आपको अब आप अगर या तो उसको और ऊपर ना लेके जाओ तो कम से कम लिव अप, लेकिन वहां से अगर रिड्यूस होना शुरू हुआ तो वो बैकफायर करता है. सर जैसे आप थोड़ा बता सकते हैं जैसे किस कंफ्यूजन. वाले. सी ओके, मैंने तूने इंटरव्यू स्टार्ट किया, हाँ जी. मुझे लग रहा है 50-45 तो दे ही देता हूँ, ठीक है, ठीक चल रहा है. कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, बैलेंस और जजमेंट बड़ा अच्छा है, सेंसिबल आंसर है सारे. मुझे लग रहा है तो भिड़ रहा है, तो समझ भिड़ रहा है. तो इंटरव्यूअर्स कन्फ्रंटेशन. there's a confrontation happening, you begin argumentative. अच्छा. मुझे अब लग रहा है ये वो जो विद साहब है ना और जो यू नो और जो बुड्ढा जी है ना, उनसे लड़ाई ना लड़े. समझ रहे हैं, राइट? ओके. हाँ जी. he has to, मतलब immaturity फील हो रही है मुझे, अच्छा. ठीक है ना. तो ये एक आर्ट है, विद एज ही होती है. टू बी ऑनेस्ट, यू आर नॉट इन दैट एज ग्रुप आल्सो कि ये बात तो सटली समझ पाए, ठीक है ना. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर इंटरव्यू अच्छा चल रहा है तो क्लोज द इंटरव्यू क्विकली, ठीक है ना. ऐसे पॉपुलेशन पॉलिसी बहुत हम आगे चले गए, उसमें डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते चले गए, है ना. जैसे यस एंड नो के बाद एक और चीज मुझे लगी कि यू आर कंफ्यूजिंग विद पॉपुलेशन कंट्रोल बिल. मतलब आप सारे पॉइंट बोल रहे हो पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में और फिर कह रहे हो मतलब जो पॉपुलेशन पॉलिसी में आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि नॉन कोर्सिव होनी चाहिए एंड ऑल दैट थिंग, अवेयर करना है सोसाइटी से, वो सारा कुछ बोल रहे हो. आप पॉपुलेशन पॉलिसी तो बना रहे हो बैठ के, आपने सारा कुछ बता दिया पॉपुलेशन पॉलिसी के क्या पॉइंट होने चाहिए आपने वीडियो, और फिर कह दिया पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए. होनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए. बना तो दी थी आपने बैठे बैठे पॉलिसी, तो शायद कहीं दिमाग में आपका पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आ गया. एक पॉपुलेशन पॉलिसी में एग्जिस्ट करती है,
तो वो उसका ना होने का तो कोई वही नहीं है, आर्गुमेंट ही नहीं हाँ है। सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज हो गया यार, 2 बच्चों से पे रोक, वो तो है पूछा ही नहीं आपसे। Right, है ना? and you came to the TFR point very late. It was like जब सर ने बोला ठीक है ना कि पॉपुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, the answer there is already sir population policy exists. Some changes can be made on it. But in some certain regions of our country, the TFI has fallen. So for us, there we need to focus upon that. Maybe we should encourage people to have more children. On the other hand, other parts of India, it still should be done in the same way. One more केरला वाले को बोलो भाई बच्चे करो, राइट? One more thing I want to ask कौन you. लेगा वहाँ पे? यार सौरभ, आप नॉर्मल अपनी आम रोजमर्रा की जिंदगी में स्माइल नहीं करते हैं? करता हूँ सर। करते हैं हाँ जी। यार, इतनी ब्यूटीफुल स्माइल है, यूज कीजिए। इंटरव्यू के दौरान आपकी स्माइल लार्जली मिसिंग रही है है ना? अब बहुत अच्छी आपकी शख्सियत है, तो स्माइल कैन बी अ वेपन, और थोड़ा प्लीजेंट हो जाएगी चीज, ठीक है सर। तो उसको थोड़ा लेके आए। थोड़ा एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ आप टेंशन में आप रहेंगे मुझे ये करना है, थोड़ा फ्राउनिंग आती है आपके, मतलब जब आप naturally है। ये टाइम सर टाइम मान दो उसकी, अरे मैं आने वाला हूँ उसके ऊपर टाइम मान दो। सही बात है। एंड टाई का कलर थोड़ा सा मेरा ख्याल है। एक्चुअली मैं ये क्लोथ्स मतलब नहीं पहनूंगा। नहीं मैं navy ठीक है, blue, इससे हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और हम सिर्फ टाइम तेरी ठीक से नहीं बन रही। कहीं एक तो बटन नहीं आपने नहीं सर ये बांधा। टाइट, बहुत टाइट हो रहा था, मैंने बाहर आके ही खोला था, जो बहुत ज्यादा कमीज है गला। ना, आपकी कमीज ऐसी होनी चाहिए, आपकी जो ड्रेस है हाँ। वो इतनी कंफर्टेबल होनी चाहिए ताकि आपको ऐसा ना लगे। मतलब जैसे इधर आइडिया है सर, गर्मी है तो थोड़ा सा कपड़ा लूज होना चाहिए जब तो पहन रहे हैं। That's all. जैसे अब हम 40 शर्ट पहन रहे हैं तो 42 पहनते हैं, ठीक तो है। थोड़ा कंफर्टेबल होगा तो फिर गर्मी तो है, ठीक। राइट? और लगेगी भी क्योंकि वैसे ही इंटरव्यू है, सो यू विल ऑलवेज फील हॉट अगर राइट। यहाँ हो गया, चलिए, पर ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये नहीं अनबटन तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अनबटन प्लस ये लूज आपकी टाई है ना, हाँ जी। लूज नहीं होनी चाहिए। और मतलब प्लेन शर्ट जैसे देखना बटन ब्लैक है हाँ जी। तो व्हाइट वाली, मतलब बिल्कुल फॉर्मल वाली शर्ट चाहिए हमें। ठीक है। बिल्कुल लूज बेसिक शर्ट होती है। लूज टाई इंडिकेट्स लूज पर्सनैलिटी। Rest all good, Saurabh. You are having good amount of knowledge with you. हाँ। अच्छा ज्ञान है, आप ऐसे नहीं बहुत गलत बोल रहे हैं ना, लेकिन थोड़ा बस वो ये कि ओवर एक्सप्लेनेशन, हम अपनी वल्नरेबिलिटीज ओपन करते हैं, हम 36 नए सवालों का आर्टिकुलेशन मौका बहुत देते हैं। बढ़िया है, हाँ जी सर। लेकिन थोड़ा कंट्रोल पे होना चाहिए। बहुत बढ़िया, all things are in your favor. हम कितने करूं मैं बस थोड़ा सा वो ओवर एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, अपनी वल्नरेबिलिटी ओपन नहीं करूंगा। 36 चीजें मुझसे और पूछो जिनके लिए मैं ही तैयार नहीं। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, छुआछूत पे कोई वहां पे अगर इस पे ड्रैग करना चाहे कि आपने कहा कि सर रूरल पॉकेट नहीं बची है, फिर सर ने शादियों वाला एग्जांपल दे दिया, इट कैन बी ड्रैग्ड इनटू एनी वे, क्या आपने कह दिया सर छुआछूत तो सिर्फ रूरल पॉकेट में बची है, ये बहुत बुरे ड्रैग किए जाएंगे। वो तो दिल्ली में भी है, वो तो दिल्ली में है, strategy समझ लो। गुड़गांव में है, मैं चंडीगढ़ में है। अपने डिस्कोर्स में ऐसी वल्नरेबिलिटी ओपन ही क्यों कर रहा हूँ? अच्छा। ओवर एक्सप्लेनेशन में ये प्रॉब्लम था। नाउ इफ यू वांट टू आस्क फ्रॉम अस एनीथिंग, नहीं सर, बस मतलब मुझे यही मतलब बस फीडबैक ही देना था कि कुछ ज्यादा अच्छा, तो मेरे को ये लग रहा है कि ये ज्यादा थोड़ा सा गलत है। बहुत अच्छी चीजें सब आपके हाथ में है। You have very good communication skills and you have a very good way of putting things. The only thing is वहाँ पे 5 लोग हैं who are experts at those things. You have to understand कि तुझे marks लेने हैं वहाँ पे, उससे discuss नहीं करना। जब join कर लेगा ना फिर discuss नहीं करना। ठीक। Right? जाएगा कब लेके? ठीक है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी डिस्कशन में यही होता है जूनियर ऑफिसर की, आप अपना पॉइंट व्यू, सारे पॉइंट ऑफ व्यू रख दो आप कि सर ये मुझे लगता है ये वो, लेकिन सर ऑब्वियसली करेंगे तो वही जो आप कह रहे हैं एंड में ही बोलना होता है, ठीक है ना, बिकॉज सीनियर्स है वो, इतना तो ऑब्वियसली, लेकिन अपने सारे पॉइंट्स रखने होते हैं एज अ ऑफिसर, राइट? गिव योर व्यू पॉइंट्स, ठीक है ना, एंड देन एग्री टू व्हाटएवर, जैसे बिकॉज वो ऑब्वियसली उनके पास एक्स्ट्रा रैशनल इंफॉर्मेशन एक्सेस करती है, बिकॉज एज वी कॉल पब्लिक आर्टिफिशियल एक्स्ट्रा रैशनल फैक्टर्स आर देयर, वो आपको नहीं बताऊं मैं जिसके बेसिस पे डिसीजन होगा, बट आप अपने पॉइंट्स यूज रखिए during that time. But here, try to understand you are not in a discussion. ठीक है सर। तो आप आंसर दीजिए, डिस्कस करिए, बट टू लिमिट। ठीक है सर, थैंक यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट।